السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اسے آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اور تنیسا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم جب چاہو آرگس کے پاس جا سکتی ہو۔ یہ میرا اچھا بلکہ بہت ہی پیارا دوست ہے، نیولس نے کہا، اور تنیسا نے مسکرا کر آرگس کی طرف دیکھا۔ آرگس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی اور وہ بڑا ہی کمینہ صفت انسان معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم تنیسا کو اس کے پاس چھوڑ کر چلے آئے۔ واپسی پر نیولس کسی قدر سنجیدہ تھا۔ وہ مجھے اپنی بہن پر بے حد اعتماد تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک قابل اعتماد لڑکی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ عمدگی سے اپنا کام انجام دے گی۔ لیکن اب تم اپنے لوگوں کو تیار کرو۔ کون سے لوگوں کو؟ وہ جو اسلحہ خانے سے اسلحہ غائب کریں گے۔ وہ ہر وقت تیار ہے اور اسی محل میں موجود ہیں۔ اب ہم یہاں سے جائیں گے تو انہیں ساتھ لے جائیں گے تاکہ راز افشا نہ ہو۔ احتیاط ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، گو ان میں سے کوئی ایسا نہیں جس پر اعتماد نہ کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود یہ احتیاط غیر مناسب نہیں، نیولس نے جواب دیا، اور میں خاموش ہو گیا۔ میرے پاس تجاویز کے جو خار تھے اور جس راستے سے میں کام کرنا چاہتا تھا انہیں زینہ بزینہ خرچ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے ارکاشا وغیرہ کی بات چھپائے رکھی اور کچھ وقت گزار کر تنیسا نے مسکراتے ہوئے اپنے کامیاب ہونے کی خوشخبری سنائی۔ نیولس اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ تو عورت کے معاملے میں پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگر میں طویل عرصے تک بھی اس کے پاس رہی تو وہ میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں اسے شراب میں ڈبو دیتی ہوں اور اس کے محافظوں کی مجال نہیں کہ وہ اس طرف آ سکے، گویا پھر میرا راج ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان جگہوں کی تفصیل بتاؤ، نیولس نے خوش ہو کر کہا۔ تنیسا نے اسلحہ خانے کا نقشہ اور اسے تفصیل سے بتایا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہم خود اس کی سیر کر چکے ہیں۔ چنانچہ اس تفصیل کے تحت نیولس کے لوگوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس کام کو نہایت سست رفتاری سے کیا جا رہا تھا تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو سکے کہ چرایا جانے والا اسلحہ نیولس کے مکان میں جمع کیا جا رہا ہے۔ اور اب صورتحال یہ تھی کہ نیولس کے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں تھی، اور اس کے ماں باپ اس اسلحے کو دیکھ کر خوب ہنستے تھے۔ میں نے ایک عظیم کام کر لیا تھا، یعنی اتنا اسلحہ جمع کر لیا کہ باغیوں کی پوری تعداد کے لیے کافی تھا، اور اب مزید اسلحے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف نیوسکی کی فوجیں عین وقت پر اسلحے سے محروم ہو جائیں گی، اور اس طرح دوہرا فائدہ ہوا تھا۔ بالآخر اسلحے کا کام ختم ہو گیا۔ نیولس نے پوچھا، اب ہمیں کیا کرنا ہے یولیسس؟ ٹھیک، بہر صورت ایگانوس نے تمہیں اجازت دے دی، اور تم نے اس سے کیا کہا کہ تم کس انداز میں کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں ایک قافلہ لے کر سفر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس بے شمار گھوڑے ہوں گے اور ان پر کافی ساز و سامان۔ تو کیا اس نے اس قافلے کی وجہ دریافت کی؟ ہاں، میں نے اسے جواب دیا تھا کہ میں باغیوں کی سرکوبی کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ قافلہ لوٹتے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد ایگانوس نے تم سے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر تم ایسے گروہ کے ہتھے چڑھ گئے تو کیا کرو گے؟ ہاں، اس نے پوچھا تھا۔ تو پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے اسے بتایا تھا کہ میں چند افراد کو لے کر جاؤں گا، اور جب وہ لوٹ مار کر رہے ہوں گے تو میں غائب ہو جاؤں گا اور چھپ کر ان کا تعاقب کروں گا، اور یہ دیکھوں گا کہ وہ ان اشیاء کو کہاں لے جاتے ہیں۔ گویا میں اس وقت اس قافلے کو چھوڑ دوں گا جب وہ لوٹ مار کر رہے ہوں گے۔ اور میں نے یہ بات ایگانوس سے کہی، اور ایگانوس نے بہرحال ایک حد تک اسے منظور بھی کر لیا۔ اوہ، تو ایگانوس نے اس بات پر کوئی تجویز پیش نہیں کی؟ ہاں، کی تھی۔ وہ کیا؟ اس نے کہا تھا کہ قافلے والوں کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ اس نے کیا بتائی؟ صرف یہ کہ اگر کوئی گروہ قافلے والوں پر آ پڑے تو ان میں سے میں بچ کر اس گروہ کا جائزہ لے سکوں۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اس طرح یہ بھی ممکن ہے کہ باغی گروہ پر حملہ آور ہی نہ ہوں، وہ ہمیں تعداد میں زیادہ دیکھ کر ہماری چال کو سمجھ جائیں اور حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر اس نے مجھ سے اتفاق کیا اور اجازت دے دی کہ میں جس طرح چاہوں کروں۔ تو پھر میرے دوست، تم نے کیا سوچا ہے اور تم کب روانہ ہوگے؟ بس کچھ وقت لگے گا۔
इस दौरान मैं घोड़ों का इंतज़ाम कर लूँगा और इस किस्म के मामलात मुकम्मल कर लूँगा कि मुझे यहाँ से निकलने में वक़्त ना हो। असले का क्या होगा? ज़ाहिर है कि यूलिसेस असला ही तो ख़ास चीज़ है, हमें उसकी ख़ास हिफाजत करना होगी, बल्कि उसे छुपा कर ले जाना होगा। मैं उसे पहली ऐसी जगह भेज दूंगा ताकि शहर से निकलकर हम घोड़ों से सामान उतरवा लें। शहर के अंदर तक हम घोड़ों पर सिर्फ वही चीज़ बार करेंगे जो हमारे जहन में है और जो एगानोस के सिपाहियों को मशकूक ना कर सके। ज़ाहिर है कि मैं एगानोस को भी वो अशिया दिखाऊंगा ताकि वो सब मुतमिन हो जाएं। मुनासिब ख्याल है, इस काम में तुम्हें जितना भी वक्त दरकार हो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूँ। नहीं बस ठीक है, बाकी सारे मामलात मैं खुद हार लूँगा। न्यूज़ ने जवाब दिया, हाँ एक बात और, क्या अब तुनीसा को वहाँ ना जाने दिया जाए? हाँ, अब उसकी ज़रूरत भी क्या है, आर्गस से कह देंगे कि तुनीसा बीमार है। ठीक है, कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेंगे और उससे डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं, और ज़ाहिर है कि उसकी पहुँच इतनी दूर तक भी नहीं। चुनाचा ये बात तय हो गई और उसी रोज़ से तुनीसा का महल जाना बंद हो गया और न्यूलस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। बिल आखिर वो वक़्त आ गया जब न्यूलस अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुका था। असला आबादी से काफ़ी दूर जमा कर दिया गया। ये जगह वीरान थी। यहाँ न्यूलस ने बेशुमार घोड़ों पर बहुत सा सामान लदवा लिया था, लेकिन अपने साथ सिर्फ 20 अफराद को लिया, और ये 20 अफराद ही वही थे जो न्यूलस के अपने हमराज और साथी थे। दूसरे महीनों में ये सब बागी थे और उस बेशुमार सामान वाले काफिले में उन 20 अफराद के अलावा मैं और न्यूलस भी शामिल थे। न्यूलस ने किसी ऐसे आदमी को साथ नहीं लिया था जो उसके लिए बुरा साबित हो सकता। जिस वक्त एगानोस ने हमें रुखसत किया तो मैं भी उनके साथ था। एगानोस ने घोड़ों पर लदे हुए सामान को भी देखा। फिर उसने हमें कामयाबी की दुआएं दी, एक ऐसे इंसान की हैसियत से जो न्यूस्की के अमूर का निगरान हो। सो हम चल पड़े। न्यूलस बहुत खुश थे। ना जाने उसके ज़हन में मेरे लिए क्या था, लेकिन वो मेरी बेपनाह इज्जत करता। और फिर हम उस जगह पहुंच गए जहां पर घोड़ों पर लदा हुआ सामान उतार कर असला बार करना था। हमने असला बार किया और खाने पीने की अशिया साथ ले ली। बाकी सामान घड़ों में दफन कर दिया और उसके बाद हमने वहां से कूच किया। न्यूलस ने मेरी जानब मैंने खेत नज़रों से देखते हुए पूछा था और मैं उस ख्याल को अच्छी तरह जान गया था। और उसने मैनिक अंदाज में मुझे देखते हुए पूछा कि हमें कौन सा रुख इख्तियार करना चाहिए यूलिसेस। तुम्हारे ख्याल में क्या तुम्हें चंद लम्हात में ही सही जगह ले जाऊंगा? मेरे ख्याल की बात ना करो यूलिसेस। मेरे ज़हन में जो कुछ भी है मैं तुमसे उसका इजहार नहीं करूंगा। हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझसे मुखलस हो और मेरे हमदर्द भी। हाँ, अगर तुम खुद को मसले में छुपाना चाहते हो तो फिर भी मेरा फ़र्ज है कि मैं तुमसे मुकम्मल तावन करूँ। क्या मतलब? मैं चौंक गया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं यूलिसेस। बल्कि बाद बातें ऐसी रवानी में हो जाती हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। ओहो, और मैंने सीटी बजाने के अंदाज में होंठ सकोड़े। वैसे मैं समझ गया था कि न्यूलस मेरे बारे में कुछ जान गया है। मैं समझ चुका था कि न्यूलस मुझसे मशकूक हो चुका है। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बहर सूरत इस चाक की कोई गलत सूरत नहीं थी और उसने खुलकर मुझसे कहा था कि वह मुझे खुद से मुखलस समझता है। चुनाचा अब जब कि नौबत यहाँ तक आ गई और कुछ देर के बाद जब मुझे न्यूलस के इल्म में ये बात लाना थी कि खुद मेरा ताल्लुक भी बागियों के गिरोह से है, तो मैं क्यों शिद्दत से इस बात को छुपाने की कोशिश करता। सो मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। अलबत्ता न्यूलस के होंठों पर मैंने खेज मुस्कुराहट थी और आंखों में कुछ जानने की सी चमक। अब न्यूलस कुछ बेचैन रहने लगा और हम आबादियों से दूर एक ऐसे इलाके की जानब जा रहे थे जो हमें बागियों के इलाके तक ले जाता, यानी उस जगह जहां मैंने सुरंगें फैलाई हुई थी और ये सुरंगें हमारी ही काविशों का नतीजा थी। वो जगह यहाँ से करीब तर थी जहां हम लोग मौजूद थे। मैं अगर चाहता तो एक तवील फासले से न्यूलस को उस ठिकाने तक ले जाता, लेकिन असले से लदे हुए घोड़े मेरे लिए बहुत कीमती थे। ये हमारी बहुत मामूली मेहनत से ठिकाने तक ले जाते, लेकिन असले से लदे यानी पहले लोहे का हसूल और उसके बाद हथियार साजी, गोया एक तवील काम एक मुख्तसर से वक़्त में तय हो गया था और एक ऐसा काम जिसके लिए हमें अच्छी खासी दुश्वारियों से गुजरना होता। मुझे अंदाज़ा था कि सुरंगों के आसपास पोशीदा रहने की जगह और कमीन गाहें कहाँ हैं। चुनाचा थोड़े से सफ़र के बाद हम एक कमीन गाह तक पहुँच गए।
इस दौरान मैंने दूसरे और भी काम किए थे, यानी मैंने ये बात ذہن में रखी थी कि कारगस तक पहुंचने का मुख्तसर तरीन रास्ता कौन सा हो सकता है, और अगर हम एक ऐसी सुरंग ऐसी बना लें जो किसी करीबी सुरंग से जाकर मिल जाए तो इसका एक रास्ता शहर में खुले, और उसके लिए हमें कितना फासले तक सुरंग खोदना होगी और उसके लिए क्या नक्शा तरतीब देना होगा। ये एक बड़ा काम था जो हमें अंजाम देना था, और सबसे बड़ा काम हो चुका था, यानी हथियारों की बाजियाबी, और न्यूस्की के लिए खासा सख्त होता था। जिसमें उसकी शिकस्त एक यकीनी अमर था। चुनाचा मैंने कमीन गाहों से थोड़े फासले पर पहुंचकर न्यूलस की जानब देखा और मुस्कुराकर कहा, न्यूलस, हम बागियों की सरजमीन तक पहुंच गए हैं। क्या मतलब? न्यूलस हैरत से उछल पड़ा। हाँ, क्या कह रहे हो यूलिसस? जो कह रहा हूँ दुरुस्त कह रहा हूँ, लेकिन बागी कहाँ है? बागी बहुत ही करीब मौजूद है, इन पहाड़ों में। इन पहाड़ों में? न्यूलस ने तअज्जुब से पूछा। हाँ। लेकिन न्यूलस एकदम हकला गया। तुम्हें इतना तअज्जुब है? मैं नहीं मान सकता, देवताओं की कसम मैं नहीं मान सकता। ये पहाड़ियाँ तो कारगस से बहुत नज़दीक हैं, और न्यूस्की के फरिश्ते भी नहीं सोच सकते कि बागी उसकी शारग से इस कदर नज़दीक हैं। हमें तो ज़्यादा सफ़र भी नहीं करना पड़ा, और मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैंने जिन बागियों की तलाश के लिए इतने दूर दराज इलाके का सफ़र किया वो तो हम में से इस कदर करीब होंगे। और बिलाशुबा अगर बागी यहाँ मौजूद हैं तो फिर उन्होंने इंतहाई महारत का सबूत देकर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जिसके बारे में कारगस के रहने वाले सोच भी नहीं सकते। क्या मैं उन बागियों से रब्ता कायम करूं? मैंने न्यूलस से पूछा। ज़रूर करो, न्यूलस ने मुस्कुराकर कहा, और फिर बोला, मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी तकदीर बहुत बुलंदी पर है, लेकिन हसीयत बदलने के बाद अगर तुम कारगस के बागियों की हसीयत से उस वक़्त मुझे मिलते जब मैं बागियों की तलाश में था और कारगस का वफ़ादार था, तो उस वक़्त बिलाशुबा बागियों की बदनसीबी होती। लेकिन यूँ लगता है कि बगावत कामयाब होकर रहेगी, और तुम मेरे दोस्त जिस कदर पुर इसरार इंसान थे उसका अंदाज़ा तो मैं पहले ही हो चुका था। और मेरे दोस्त यूलिसस, मैं अपनी बातों से ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम्हें जल्दी से उनसे रब्ता कायम करो। और मैंने गर्दन हिला दी। उसके बाद अपने मखसूस इशारे मैंने शुरू कर दिए, और मेरा हाथ एक मखसूस अंदाज में चल रहे थे, गोया एक तवील दास्तान थी जो मैं बागियों को सुना रहा था। और फिर मैंने अपना इशारा नशर करने के बाद न्यूलस की जानब देखा, जो बगौर मेरे इशारों को देख रहा था, और मैंने उसे मुखातब करते हुए कहा, न्यूलस, तुम अपने आदमियों को क़याम ताम का बंदोबस्त करने का हुक्म दो। क्या तुम यहाँ क़याम करोगे? न्यूलस, तुम मुझे एक बात का जवाब दो। मैंने न्यूलस की बात को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। ज़रूर यूलिसस, ज़रूर। क्या ये सारे आदमी तुम्हारे काबिल भरोसा हैं? क्या ये हमारे ख़िलाफ़ तो नहीं जा सकते? तुम राज़ों की बात करते हो यूलिसस। बिल्कुल, मेरा मकसद यही है, और तुम्हारा मकसद ये है कि बागी उनके सामने अपना खुफिया ठिकानों से बाहर ना आए। हाँ, ये भी सही है। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक तजवीज़ पेश कर सकता हूँ। वो क्या? इन तमाम लोगों को बागियों के हवाले कर दिया जाए, और उनमें से सिर्फ चंद अफराद साथ रहने दिए जाएं जिन्हें हम वापस ले जा सकें, जिन पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता है। ज़ाहिर है वापस जाकर बाकी लोगों के बारे में हमें कोई ना कोई कहानी सुनानी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जब हम वापस एगानोस में पास पहुंचेंगे तो क्या उसे ये नहीं बताएंगे कि हमारा सारा सामान कैसे लूटा गया और काफ़िले के आदमी किस तरह हलाक कर दिए गए। और इस वक्त तुम्हारे ख्याल के मुताबिक हमें क्या जवाब देना होगा? न्यूलस ने मुझसे सवाल किया। ज़ाहिर है कि ऐसा जवाब जिससे एगानोस मुकम्मल तौर पर मुतमिन हो सके, मैंने जवाब दिया। बिल्कुल दुरुस्त यूलिसस। दरअसल इस सिलसिले में मुझे तुमसे ही मशवरा लेना था। ज़ाहिर है कि कोई ना कोई जवाब तो देंगे ही। एगानोस को इस बात का इल्म है कि बागियों के गिरोह बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और उनकी कार्रवाइयाँ हमारी कार्रवाइयों से ज़्यादा मौसर हुआ करती हैं। चुनांचे अगर हम उसको कोई कहानी सुनाएंगे तो वो उस कहानी पर शुबा नहीं करेगा। खूब तो वापस ले जाने वाले आदमी कितने होंगे? मैंने सवाल किया। सिर्फ 5, छठा मैं और 7वें तुम। मुनासिब, मैंने जवाब दिया और पुलिस दूसरा काम अंजाम देने लगी। तो फिर उसने अपने आदमियों को क़याम का हुक्म दे दिया। घोड़ों के ऊपर से सामान उतारा जाने लगा और ये काफ़िला क़याम पजीर हो गया। लेकिन ज़्यादा देर न लगी थी कि पहाड़ी चट्टानों ने घोड़े उगलना शुरू कर दिए
घोड़े इस सवार इस बरक रफ्तारी से काफिले के चारों तरफ जमा हो रहे थे कि तअज्जुब होता। मैंने अपने लोगों की कार्रवाई देखी और मुतासर हुआ। ये लोग बहुत ही ज़्यादा जहानत का सबूत दे रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कार्रवाई में एम्ब्रोस भी शरीक था। यकीनन उसे इतला दे दी गई होगी कि कोई काफिला यहाँ आकर रुका है और उससे इशारे नशर किए जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि एम्ब्रोस ने सुरंगों के दरमियान इतना तवील साफरा इतनी जल्दी तय कर लिया था, क्योंकि जिस जगह हमारा खसूसी ठिकाना था वहाँ से उस सुरंग तक का फासला काफ़ी तवील था, और अगर सुरंगों में घोड़े भी दौड़ाए जाते तो ये फासला इतनी जल्दी तय नहीं हो सकता था। बहरहाल हर बात से किता नज़र ये आला कारकर्दगी की एक उम्दा मिसाल थी, या फिर यह भी मुमकिन था कि एम्ब्रोस यहीं कहीं करीब ही मौजूद हो। फिर मैंने एम्ब्रोस को देखा और एम्ब्रोस ने मुझे। बागी हमारे चारों तरफ फैल गए, और फिर एम्ब्रोस 2 आदमियों के साथ मेरे सामने पहुंच गया। वो घोड़े से उतरा और मेरे नज़दीक आकर झुक गया। अजीम सरबरा, और उसने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, क्या हुक्म है? और मैंने न्यूलस की जानब देखा और उसकी निगाहों में कुछ जानने की चमक थी। बहरहाल मैंने उस बात को कोई अहमियत न देते हुए एम्ब्रोस से कहा, एम्ब्रोस, ये सारा असला हासिल कर लो। मेरा ख्याल है कि ये तुम्हारी तमाम तर फौज के लिए काफ़ी है। यकीनन क्या ये सारा सामान असला है? हाँ, तुम उसे आसानी ले जा सकते हो। और ये लोग? एम्ब्रोस ने सवाल किया। सब हमारे वफादार हैं और सब हमारे साथी। वाह, गोया तुमने वहाँ भी एक हैरत अंगेज़ कारनामा अंजाम दिया। एम्ब्रोस ने सवाल किया। जो चाहे समझ लो, और मैं तुम्हें कुछ सोचने से ना रोक सकूँगा, मैंने जवाब दिया। और एम्ब्रोस असला सुरंगों के ज़रिए अपने खुफिया ठिकानों तक पहुँचाने लगा। न्यूलस के साथी मुतहय्यराना अंदाज में बागियों को देख रहे थे, और ख़ुद न्यूलस की हालत भी हैरत अंगेज़ थी। वो हैरत से मुंह फाड़े मुझे देख रहा था, और मैं उसकी वजह समझ गया। वो एम्ब्रोस के अल्फाज पर हैरान था जो उसने मेरी शान में कहे थे। और फिर जब मैं न्यूलस और उसके साथियों को लेकर सुरंग के अंदर दाखिल हुआ तो न्यूलस ने आहिस्ता से पूछा, क्या ये दुरुस्त है मेरे दोस्त यूलिसस? हाँ न्यूलस, तुमने कभी गौर ही नहीं किया? क्या तुमने कभी इस बात पर सोचा कि बागियों का सरबराह कौन है? मैंने सुना था कि उसका नाम यूलस है। ओहो! अचानक न्यूलस को अपनी बात का एहसास हुआ और उसकी आंखें शिद्दत हैरत से फटी की फटी रह गई। क्या मैं यूलिसस को यूलस भी कह सकता हूँ? हाँ, मैं यूलस ही हूँ, मैंने जवाब दिया, और न्यूलस के रोंगटे खड़े हो गए और उसका चेहरा शिद्दत हैरत से सुर्ख हो गया। फिर वो काफ़ी देर तक कुछ न बोल सका, और अब वो पत्थर के बुत की तरह मेरे साथ साथ चल रहा था, जैसे उसे अपनी वाकफियत पर शदीद हैरत हो। सुरंगों का ये जाल जितना तवील था, न्यूलस उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। आखिरकार असला सुरंगों में मुंतकिल हो गया, और फिर मैंने फैसला किया कि न्यूलस को उन सुरंगों की सैर कराऊंगा, और मैंने उसके 15 साथियों को अपने साथियों के हवाले कर दिया। और न्यूलस नया नहीं, ये बात बता दी थी कि उन्हें यहाँ किस तरह रहना है। बाकी 5 आदमी जो उसे वापस ले जाना थे, उनको भी उसने मुंतखब कर लिया था। यूँ उनके लिए एक अलग जगह मुंतखब कर दी गई, और उसके बाद मैं न्यूलस को लेकर चल पड़ा। और फिर मैंने न्यूलस को वो असीम शान गार दिखाया जो कैदियों की रिहाइशगाह थी, और गार में मौजूद सुरंगों के ज़रिए वो दूर दूर के इलाकों में जा सकते थे। जहाँ हमारा जितना भी वक्त सिर्फ न्यूलस को उन इलाकों को दिखाने में सिर्फ हुआ था, और उसके बाद मैंने ये खेल ख़त्म कर दिया। अब हम वापसी का प्रोग्राम बना रहे थे। न्यूलस ने जो कुछ देखा और उससे मेरी शख्सियत के बारे में जो कुछ भी मालूम हुआ, और उसके लिए बाइसे हैरत, और अब वो अक्सर हैरान ही रहा करता था। अक्सर वो तन्हाई में मेरी शक्ल देखा करता, और 1-2 बार मैंने उसे पूछा तो कहने लगा, मेरे वहमो गुमान भी नहीं था यूलिसस कि तुम कौन और क्या होगे। अफसोस मैं तुम्हारे साथ उतनी अच्छी तरह पेश नहीं आया जितना मुझे आना चाहिए था। इस बात को ज़हन से निकाल दो न्यूलस। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम मेरे हमनवा बन गए हो, और हाँ, शायद ये मेरी खुशनसीबी है, वरना तुम तो मेरे सर तक पहुँच गए थे। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन ही होता तो क्या तुम्हारे हाथ आसानी मेरी गर्दन तक न पहुँच जाते, और उसके बाद तुम मुझे नहायत इत्मीनान से कत्ल कर सकते थे। और उसके लिए मैं वक़्त का शुक्रगुजार हूँ न्यूलस कि उसने ये मौका ना आने दिया। ये हकीकत है न्यूलस कि अगर तुम तब्दील ना होते अपने इरादों में तो मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक ज़िंदा ना रहने देता। लेकिन बहरहाल तुम्हारे रूप में ना सिर्फ मुझे अपना
ایک ہم نوا بلکہ اتنا عظیم دوست بھی ملا جس کی دوستی پر میں بجا طور پر فخر کر سکتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ نیولس اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ بالکل، اور میں خود بھی اس کام میں جلدی کرنا چاہتا ہوں، نیولس نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور پھر ہم سرنگوں کے سفر سے واپس چل دیے۔ ایمبروس اسلحے کے یہ ذخیرے دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا اور اس کے پاس رہنے کے لیے مجھے بہت کم وقت ملا، لیکن اسے نقشے اور ہدایت تو دینا ہی تھی اور میں نے اسے پوری تفصیل سمجھا دی۔ اور نیولس گردن ہلانے لگا۔ تو تم نے جو کچھ کیا پولیس میں اس میں یولس اور میں اس پر سخت حیران ہوں، لیکن میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ارمغانوں کی وادیوں نے ایک ناقابل یقین کارنامہ انجام دیا ہے، اور وہ کارنامہ ہے تیری پیدائش اور تیری پرورش۔ حیرت چھوڑو ایمبروس، کیا تو اس اسلحے سے مطمئن ہے؟ اسلحہ بھی ہمارے پاس کافی موجود ہے، لیکن اس عظیم و شان ذخیرے کے بعد تو ہماری ساری ضروریات پوری ہوں گی۔ سرنگ کا نقشہ سمجھ لیا؟ ہاں، اور اب ہماری اور تمہاری ملاقات سرنگ کے اختتام پر کارگس میں ہی ہونی چاہیے، اور اس کام میں تم جتنی جلدی کرو تو بہتر ہے۔ تم مطمئن رہو یولس، سارے کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوں گے۔ خوراک کی کیا کیفیت ہے؟ محفوظ ذخائر ابھی تک موجود ہیں، بلکہ ان میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے ساتھی بہترین غلہ اور سبزیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کا جذبہ قابل داد ہے۔ یقیناً اس کے بعد ان کی زندگی میں جو خوشگوار تبدیلیاں آئیں گی وہ ان کی محنتوں کا ثمر ہوں گی۔ اس کے علاوہ پولیس ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی ملے ہیں جو انہی قیدیوں میں شامل تھے جو ہمارے ساتھ فرار ہوئے۔ اوہو، کتنی تعداد ہے ان کی؟ 20 آدمی تھے، کہاں مل گئے؟ ویرانوں میں بھٹک رہے تھے، موت کے نزدیک تھے۔ اگر ہم ان کی زندگی نہ بچاتے تو وہ موت کا شکار ہو جاتے۔ اچھا کیا تم نے، لیکن ان سے ان کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئیں اس نے ہم سب کے حوصلے اور بڑھا دیے۔ خوب، وہ کیا معلومات تھیں؟ ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ تھا، ایسی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی تھی کہ سن کر خوف آتا ہے، اور اس لحاظ سے ہمارے ساتھیوں نے تو بہترین وقت گزارا۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہم نے انہیں خود میں شامل کر لیا، اور وہ لوگ اب ہمارے مشن سے بہت مخلص ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن ہر شخص کو مصروف رکھو، کسی کو کاہلی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سب کاشت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ایمبروس، کوئی اور سوال نہیں؟ میری ہدایت پر تم نے غور کر لیا؟ ہاں، بخوبی، اور تم یہاں کے معاملات سے بے فکر رہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم کوئی ناقابل یقین کارنامہ انجام دینے میں مصروف ہوگے۔ بہرحال میں بذریعہ سرنگ کارگس پہنچ رہا ہوں۔ ایمبروس کی یقینی دہانی کے بعد میں وہاں سے چل پڑا۔ 5 ساتھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ان کی حالت خستہ بنا دی، اور اب ہم کارگس واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی تھا جس کا تذکرہ میں نے نیولس سے کیا۔ نیولس کے اسلحے کی گمشدگی کا راز کھل گیا ہوگا؟ اوہ، ممکن ہے۔ کیا ان کا شبہ ہمارے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے؟ ناممکن۔ پھر وہ کیا سوچیں گے؟ دوسری بات ہے کہ وہ اسے باغیوں کی حرکت سمجھے اور تحقیقات کریں گے کہ کاغذ میں باغی کہاں سے گھسے۔ اس صورت میں تو ہم محفوظ ہیں، 100% ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں، نیولس نے مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر میں اسے مزید تفصیلات بتانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے علاوہ میں ایک اور انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ اوہو، اب کوئی انکشاف باقی رہ گیا ہے کیا؟ اور مجھے تو آج تک حیرت ہے کہ باغیوں کا عظیم سربراہ میرے ساتھ ہے، نیولس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہ بات میری ذات سے متعلق نہیں۔ پھر محال ہی کی ایک بات ہے، لیکن میرے خیال میں تم خود بھی اس سے لا علم ہو، ورنہ اس کا تذکرہ ضرور کرتے۔ ایسی کون سی بات ہے؟ تم نے کبھی مجھے ارکاشا کے بارے میں نہیں بتایا۔ ارکاشا، نیوسکی کی ماں؟ ہاں، اور اس کے بارے میں کوئی قابل ذکر بات ہے ہی نہیں۔ کیا وہ زندہ ہے؟ ہاں، اور محل کے ایک گوشے میں رہتی ہے۔ کیا وہ گوشہ نشین ہے؟ ہاں، اس نے خود ہی یہ زندگی اختیار کی ہے، لیکن اس کا بیٹا نیوسکی اس کا پورا خیال رکھتا ہے، اور اس نے اسے محل ہی کے ایک حصے میں رکھا ہے۔ کیا نیوسکی اس سے ملنے بھی جاتا ہے؟ یہی سنا ہے کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا ہے۔ تمہارے کسی سپاہی نے تمہیں اس حاضری کی تفصیل نہیں بتائی؟ نہیں، کوئی خاص بات ہے؟ نیولس کی آنکھوں سے تجسس جھانک رہا تھا، لیکن میں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ایک اور سوال داغ دیا۔ کیا ایگانوس اپنی بیٹی سے ملنے کبھی نہیں جاتا؟ ایگانوس؟ نیولس چونک پڑا اور پھر جلدی سے بولا، نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اس سے نہیں ملتا۔ کیوں؟ وہ بیٹی سے زیادہ خوش نہیں۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ارکاشا کی وجہ سے اس کی حکومت چھن گئی تھی۔ کیا اسے اس کی محبت بھی نہ ہوگی؟
ऐसी बात नहीं, लेकिन वो अपने ही जोड़ तोड़ में मसरूफ रहता है। उसे बागियों का भी खौफ है, इसलिए वो हर वक्त जागती रहना चाहता है। तो फिर वो ज़रूर लाइल्म होगा। कौन सी बात से? वैशी दरिंदा 100% जानवर है। मेरी समझ में नहीं आता कि वो इंसान की औलाद किस तरह हो सकता है। यानी गोरिल्ला अपनी माँ को सिर्फ औरत समझता है और अरकाशा का बदन उसकी नाखनों की खराशों से भरा हुआ है और वो मजबूर है और बेटे से नफरत करती है। क्या? और न्यूलस का मुंह हैरत से खुला रह गया। हाँ, न्यूलस, ज़ाहिर है कि वो एक वैशी जानवर है और उससे ज़्यादा क्या तवक्का रखते हो? और ये तुम्हारी इस दुनिया का सबसे अलमनाक पहलू है। तुम ताबे हो उसके जिसकी चीरा दस्तियों ने तख्तल हसरा का मुस्तकबल तारीख कर रखा है, और वो सिर्फ एक जानवर है, इंसानों की सिफात रखने वाला जानवर। हाँ, बड़ी भयानक बात कही तुमने यूलिसस। ऐसी खौफनाक बात कि अगर कारगस के लोगों को मालूम हो जाए तो एक तूफान खड़ा हो जाए। उस तूफान का नतीजा क्या होगा? मैंने न्यूलस को घूरते हुए कहा। कत्लो गारतगरी और बेपनाह खून रेजी, क्योंकि बहरहाल न्यूस्की के हमनवा उसके लिए सब कुछ करेंगे और वो ताकतवर हैं। खबा एगानूस का क्या रवैया होगा? मैंने दूसरा सवाल किया और न्यूलस सोच में डूब गया। फिर गर्दन हिलाकर बोला, उसके बारे में नहीं कह सकता है। मुमकिन है कि एगानूस का नज़रिया बदल जाए और वो न्यूस्की का दुश्मन बन जाए, और उसके अमकानात मौजूद हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि अगर खुद एगानूस उस पहलू को नज़रअंदाज करना चाहिए तो उसके बस की बात नहीं, और उसके खिलाफ इस कदर नफरत फैल जाएगी कि वो उस नफरत का सामना नहीं कर सकेगा। गोया दोनों पहलू हमारे हक में हैं। क्या मतलब? मैं एगानूस को उस अलमियत से रोशनास करना चाहता हूँ न्यूलस, और अब वापस जाने के बाद तुम्हारा ये काम होगा कि मेरी मुस्तकिल ड्यूटी न्यूस्की पर ही लगा दो। ओहो, तो तुम उससे क्या हासिल करना चाहते हो? उन दोनों में इख्तलाफ, लेकिन उसका इजहार मैं उस वक़्त करूँगा जब मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा। ओहो, तुम किस कदर ख़तरनाक हो यूलिसस। बिलाशुबा तुम्हें इसका हक पहुँचता है कि तुम बागियों की सरबराही करो और उसके बाद मुल्क का नज़्म नसक संभालो, न्यूलस ने कहा, और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अहमक नौजवान गलतफहमियों का शिकार था और उसे क्या मालूम था कि मैं क्या था। अगर मेरे बारे में जानता होता तो हैरत का मुजस्समा होता। हम कारगस में दाखिल हो गए और न्यूलस ने पहले शाही महल का रुख किया। मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं थी, लेकिन जिस वक्त न्यूलस एगानोस के सामने पहुंचा तो मैं भी उसके साथ ही था। न्यूलस ने बड़े परेशान लहजे में अपनी नाकामी की दास्तान सुनाई और उसने बताया कि काफिला लूट लिया गया। बागियों की निगाहों से वो रूपोश ना हो सका। उसे और उसके साथियों को जख्मी करके डाल दिया गया। एगानोस का गुस्सा शबाब पर था। यूँ लगता है कि न्यूलस कि तुम अपने ओहदे के काबिल नहीं। बागियों की सरगर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं और तुम हमेशा अपनी नाकाम सूरत लेकर मेरे सामने आते हो। मैं शर्मसार हूँ, न्यूलस ने कहा, लेकिन तुम्हारी शर्मसारी न्यूस्की के बागियों को ख़त्म नहीं कर सकती। मैं न्यूस्की से मशवरा करके किसी और शख्स को तुम्हारी जगह तैनात करूँगा। उस वक्त तक तुम अपने अहदों को छोड़कर महल के मुहावजों के घरों के खदमात अंजाम दो। न्यूलस ने सर झुका दिया और फिर वहाँ से चला आया, लेकिन उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। क्या ख्याल है यूलिसस हमारे दोस्त? एगानूस ने तो हमारे ऊपर अनायत की है, बेशक हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि अब अपना काम अंजाम दो। कौन सा काम? तुम एगानूस को उसकी बेटी अरकाशा के बारे में बता दो। ये एक दिलचस्प काम होगा, लेकिन अब तो तुम्हारी खिदमत बदल चुकी हैं न्यूलस। क्यों ना ये काम अब तुम करो? ज़ाहिर है कि तुम महल के मुहावजों के निगरान बन गए हो। ओहो, जैसा तुम कहो, न्यूलस ने कहा, और हम इस सिलसिले में लाहे अमल मुरतब करने लगे। असला खाने से असले की चोरी की बात अभी तक मंजर आम पर नहीं आई थी। बहरहाल न्यूलस ने महल के निगरान की हैसियत से मामलात संभाल लिए। मैं हस्बे मामूल गोरिल्ले शहनशाह न्यूस्की का खादम में बन गया था और मुस्तकिल तौर पर उसकी खबाबगाह में तैनात था ताकि उस पर निगाह रखूं, और बिलाशुबा उस गोरिल्ले के कारनामे बेहद घिनौने और काबिल नफरत थे। मुझे उसकी ज़ात से बेपनाह घिन आने लगी, और मैंने ये बात बखूबी महसूस की थी कि दूसरे पहरेदार महल के दूसरे बेशुमार लोग उससे बेपनाह नफरत करते थे और वो उसकी रायत में थे, लेकिन खुश नहीं थे। नौजवान और नौखेज लड़कियां गोरिल्ले के खबाबगाह में पहुंचाई जाती और उसके बाद या तो उनकी लाशें बरामद होती या फिर वो इस हालत में होती कि उनके जिस्म लहूलुहान होते। बड़ी दर्दनाक कैफियत होती थी उनकी। और उसके बाद जब न्यूस्की अपनी खबाबगाह से बरामद होता
तो दिल चाहता कि उसके बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, लेकिन अभी कुछ वक्त बाकी था। सारे काम आहिस्तगी से करना थे। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक था, मैं अगर चाहता तो ये सारे काम कर सकता था, लेकिन बात सिर्फ उस गोरीले की नहीं थी, बल्कि कारगिल की पूरी हुकूमत को तब्दील करना था। और इस सिलसिले में बहर सूरत इस कमबख्त जानवर की हमदर्दी काफ़ी थे, न जाने क्यों।